بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں بچپن ہی سے بہت حساس واقع ہوئی ہوں۔ میرا دل شروع ہی سے حد درجے نرم ہی رہتا ہے۔ کسی کو غمگین دیکھتی ہوں تو خود بھی بہت اداس ہو جاتی ہوں، چاہے وہ کوئی فلمی سین یا ڈرامہ ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ بعض دفعہ تو میری ہچکی بن جاتی ہے، اور اپنی اسی کمزوری سے میں نے بارہا نقصان ہی اٹھایا ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میں 5ویں کلاس کی طالب علم تھی تو ہمارے گھر ایک بہت ہی لاغر اور ضعیف سے بابا جی آتے تھے۔ لاٹھی ٹیکتے ہوئے میں ان کو دیکھ کر بہت روتی تھی کہ اتنے بوڑھے ہو کر بھی وہ گلی گلی پھر رہے ہیں۔ میں اکثر ان کو اپنے حصے کا کھانا دے آتی تھی اور ان کے پاس بیٹھ کر باتیں بھی کرتی تھی۔ وہ مجھے بدلے میں ڈھیر ساری دعائیں دیتے تھے، لیکن اس وقت مجھے یہ سب کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، بلکہ ابھی بھی کسی بہت ضعیف اور کسی بہت چھوٹے سے بچے کو محنت کرتے ہوئے دیکھتی ہوں، دل بہت کڑتا ہے اور کوشش کرتی ہوں کہ ان کے لیے کچھ کر سکوں۔ لیکن ایک ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا جس نے میری سوچوں کو کافی حد تک بدل دیا۔ پھر میں بھی حالات اور وقت کے ساتھ بدل گئی۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ قارئین کی نظر ہے، پھر آپ فیصلہ کیجئے گا کیا اب میں صحیح ہوں یا غلط۔ ہوا یوں کہ مجھے کچھ شاپنگ کرنی تھی، اپنے لیے، امی کے لیے اور بچوں کے لیے۔ میرا 5 سالہ بیٹا بہت دنوں سے سائیکل کے لیے ضد کر رہا تھا۔ میں نے سوچا چلو آج میں سارے کام نپٹاتی ہوں۔ میں نے اپنا پروگرام اس طرح بنایا کہ ساری شاپنگ کر لوں، آخر میں سائیکل لے لوں تاکہ اس کو لے کر پھرنا نہ پڑے، کیونکہ وہ ایک بڑی چیز ہے اور کسی شاپر میں نہیں آ سکتی تھی۔ اس بات پر عمل کرتے ہوئے میں نے ساری شاپنگ کر لی۔ اچھا خاصا اماؤنٹ خرچ ہوا تھا۔ میرے ہاتھ میں 4-5 شاپنگ بیگ تھے جن کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو رہا تھا، اور کافی ٹائم بھی ہو گیا تھا۔ بھوک پیاس دونوں ہی لگنی شروع ہو گئی تھی۔ خیر میں نے رکشہ رکوایا۔ جس رکشے کو رکوایا اس کو اچھے خاصے ضعیف سے انسان چلا رہے تھے۔ مجھے ان کو حسب معمول دیکھ کر بڑا دھچکا لگا، کیونکہ وہ خاصے کمزور اور لاغر دکھائی دے رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ نہ جانے کب سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ ان کو دیکھ کر میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ میں ان کو زیادہ کرایہ دے دوں گی۔ یہ سوچ کر میں ان کے رکشے میں بیٹھ گئی، ساتھ میں سارے شاپنگ بیگ بھی رکھ لیے سنبھال کر۔ رکشے میں بیٹھتے ہی مجھے بھوک پیاس نے شدت سے ستانا شروع کر دیا۔ میں نے ایک برگر والے کی شاپ پر رکشہ رکوایا۔ اس برگر کے ساتھ گنے کے جوس والا بھی موجود تھا۔ جب میں برگر کا آرڈر دینے لگی تو خیال آیا کہ بابا جی یعنی رکشے والے کو بھی کھلا دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں نے بابا جی سے کہا آپ بھی کچھ کھا لیں، تو کہنے لگے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، جب میں شام کو گھر جاؤں گا تو چٹنی روٹی کھا لوں گا۔ میں نے کہا ارے بابا جی آپ کھا لیں، پیمنٹ میں کروں گی، آپ نے جو بھی کھانا ہے کھا لیں۔ پھر شاید انہوں نے کباب روٹی کی فرمائش کی، کیونکہ برگر والے کے ساتھ کباب روٹی کا ہوٹل بھی تھا۔ کباب روٹی کے ساتھ انہوں نے لسی کا آرڈر دیا، جو کہ میں نے منظور کر کے اس کی بھی پیمنٹ کر دی۔ میں نے اپنا برگر کھا کر گنے کا جوس پی کر خدا کا شکر ادا کیا، اور ساتھ میں اپنے اندر ایک اطمینانیت سی محسوس کرنے لگی کہ میں نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، صرف اپنے رب کی خاطر کہ شاید وہ مجھ گناہگار سے راضی ہو جائے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے لو یہ کون سی کمال کی بات ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اصل بات تو آگے چل کر شروع ہوگی، پھر آپ کو بھی افسوس ہوگا۔ خیر کھانے پینے سے جب فارغ ہوئے تو میں نے بابا جی سے کہا اب آپ مجھے لائٹ ہاؤس سائیکل مارکیٹ لے چلیں، پھر وہاں سے سائیکل لے کر آپ مجھے گھر چھوڑ دیجیے گا۔ بابا جی نے کہا کیوں نہیں بیٹی، تم نے بھی میرا پیٹ بھرا ہے، میں بھلا اپنی بیٹی کو گھر کیوں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے رکشہ سائیکل مارکیٹ کی طرف موڑ دیا۔ 10 منٹ کے بعد ہم سائیکل مارکیٹ میں موجود تھے، اور ہاں ان کو جب میں نے کھلایا تو مجھے اپنے اندر بڑا سکون محسوس ہوا کہ میں نے نیکی کی ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ انسان جب کوئی نیکی خاص خدا کی رضا کے لیے کرتا ہے تو دل کو بڑا سکون محسوس ہوتا ہے۔ مجھے بھی بس ایسا لگ رہا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سکون عارضی ہے۔ خیر جناب سائیکل کی دکان پر رکشہ رکوایا تو میں نے سوچا کہ میں سائیکل لینے کے لیے اتروں گی تو ساتھ میں شاپنگ کے شاپرز ہیں، پرابلم ہوگی اور سائیکل خریدنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر میں نے بابا جی سے کہا کیا میں
अपना सामान रिक्शे में छोड़ दूं? जितनी देर मैं साइकिल लूँगी आप मेरे सामान का ख्याल रखिएगा। बस सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे, आपको कोई मसला तो नहीं होगा? अरे नहीं बेटी, कोई मसला नहीं होगा, तुम इत्मीनान से साइकिल खरीद लो, सामान की फ़िक्र मत करो, वो मैं देख लूँगा। मगर मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। कुछ भी हो, हर किसी पर एतबार नहीं करना चाहिए, और फिर सामान अच्छे खासे अमाउंट का था। बाबा जी ने जब यह देखा कि मैं थोड़ी परेशान हो रही हूँ और सामान छोड़कर जाना नहीं चाह रही, तो बोले, अरे बेटी, तुमने एक भूखे इंसान को खाना खिलाया, पानी पिलाया, क्या वो तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड कर सकता है? मैं इस उम्र में ऐसा कोई गलत काम करके खुदा को नाराज़ नहीं कर सकता। जाओ बेटी, साइकिल खरीद लो और सामान की तरफ से बेफिक्र हो जाओ। बाबा जी की इस तरह कहने पर मैंने सोचा कि शायद वो सही कह रहे हैं, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। यानी मेरी सादगी थी कि फिर मैं उन पर भरोसा कर लिया। सिवाय पर्स के मैंने बाकी सारा सामान रिक्शे में छोड़ा और साइकिल लेने अंदर शॉप पर चली गई। अलबत्ता जहन नशीन कर लिया कि रिक्शा कहाँ पर खड़ा है, ताकि वापसी में कोई मसला ना हो। खैर, मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर साइकिल खरीदी और बहुत खुश थी कि अपने प्यारे बेटे की ख्वाहिश पूरी कर दी है। ज़्यादा बड़ी साइकिल नहीं थी। खुद ही हाथ में पकड़कर दुकान से बाहर आई और थोड़ा सा चलकर जब नज़रें दौड़ाई तो रिक्शा नज़र ना आया। मैंने सोचा कि शायद मैं जगह भूल गई होंगी। फिर मैंने चारों जानिब नज़रों को दौड़ाया, लेकिन मुझे मेरा मतलूबा रिक्शा नज़र न आया। मैं थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ी और रिक्शे को ढूंढना शुरू किया। रिक्शे तो वहाँ बहुत सारे थे, लेकिन मेरा वाला रिक्शा तो नज़र ही नहीं आ रहा था। मैंने दोबारा उस इलाके को अच्छी तरह से देखा, लेकिन वो मौसूफ वहाँ से गायब हो चुके थे। 5-6 दफ़ा मैंने ढूंढा, आसपास के लोगों से पूछा, दुकान वालों से भी रब्ता किया, लेकिन वो बाबा जी रिक्शे समेत गायब हो चुके थे। और फिर हर कोई वहाँ पर इतना मसरूफ़ था कि किसी ने कोई ख़ास तवज्जो ही ना दी। मेरा दिल उस वक़्त ऐसा धड़क रहा था कि जैसे बाहर ही निकल आएगा। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। क्या इतनी जल्दी किसी की नीयत ख़राब हो सकती है? क्या कोई भी इरादे इतनी ड्रामाई अंदाज में बोल सकता है? वो भी एक बूढ़ा और कमज़ोर लागिर सा शख्स। क्या धोखा दिया उस शख्स ने। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। एक हाथ में मेरा पर्स, दूसरे में साइकिल पकड़े मैं उस वक़्त हैरत ज़दा हो गई थी। मैं फिर वहाँ पर तकरीबन 1 घंटे तक रही और बार बार इधर उधर दौड़ती रही कि शायद वो कहीं से नमूदार हो जाए। ये देखकर कुछ लोग मेरी तरफ आए और कहा, मोहतरमा, गलती आपकी है, आपने अपना सामान इस तरह से क्यों छोड़ा, क्यों इतना एतबार किया? क्या आपको पता नहीं ये दुनिया धोखेबाजों से भरी पड़ी है? मालो दौलत देखकर तो अपने भी आंखें फेर लेते हैं। वो तो फिर एक गैर शख्स था। मुझे उस वक़्त ऐसा लग रहा था कि मैं जंगल बेअबां में खड़ी हूँ और मेरी चारों तरफ एतबार और एतमाद की कुर्सियाँ बिखरी पड़ी हैं। मुझे अपने सामान का इतना अफसोस नहीं हो रहा था जितना अफसोस उस बात का हो रहा था कि मैंने कितने खलूस से उनका ख्याल रखा और उन्होंने उस सामान का उसका मान भी ना रखा। खुदा न खास्ता मैंने उन पर कोई एहसान नहीं किया था। खाना खिलाकर ये तो खुदा की तरफ से वसीला बनता है, लेकिन बंदे को इतना एहसास तो होना चाहिए कि अभी जो शख्स मेरे साथ इतना मुखलिस है, कम अज़ कम उसका थोड़ा सा ख्याल तो रख लें। लेकिन शायद उन्होंने मेरे खलूस का मजाक उड़ाया था। यकीन करें, मैंने फिर खलूस व चाहत के साथ उनकी ज़ईफ़ी का ख्याल किया था और उन्होंने किस तरह से मुझे जल देकर बेतबारी की दीवार खड़ी कर दी थी। मेरा मान एक छन्नाके के साथ ज़मीन बोस हो गया। मेरे कदम एकदम से बहुत भारी हो गए। दिल डूब सा गया। ढीले हाथ पैरों के साथ दूसरा रिक्शा रुकवाया और बहुत ही रुहासे अंदाज के साथ रिक्शे में सवार हो गई। चेहरा बिल्कुल जर्द सा हो गया। सोच सोच कर दिमाग शल सा हो गया कि जब रिक्शे वाले ने बार बार पूछा कहाँ जाना है तो मैंने गायब दिमागी के साथ अपने इलाके का पता बताया और रिक्शे से टेक लगाकर बैठ गई। बार बार आंखों से आंसू गिरते रहे। सारे रास्ते आंसुओं को खुश्क करती रही जो कि रुक ही नहीं रहे थे। अपने हाथों को देखा जिनमें कुछ देर पहले कितना सारा सामान था, अब हाथ तकरीबन खाली से थे। कितने अरमान से मैंने अपने बच्चों की शॉपिंग की थी,
क्योंकि मैं बाज़ार बहुत कम जाती हूँ और जब जाती हूँ तो काफ़ी शॉपिंग कर लेती हूँ। मेरा बाज़ार जाना बहुत कम होता है, लेकिन अब तो लग रहा था शायद अब कभी ना जा सकूँ, क्योंकि मेरे साथ ये पहली बार हुआ था, इसलिए सब्र ज़रा मुश्किल ही से आ रहा था। लग रहा था कि रक्शे में पर लग जाएं और एक लम्हे में घर आ जाए, लेकिन जाने क्यों रास्ता लंबा ही होता जा रहा था, या मुझे ऐसा लग रहा था। बड़े डूबते दिल के साथ घर में दाखिल हुई। सबसे नज़रें मिलाते हुए अजीब सा लग रहा था। अपने लूटने का गम, अपने खुलूस को बेमोल होते देखकर दिल को सब्र ही नहीं आ रहा था। सामने ही मेरे बच्चे और अम्मी खड़ी हुई थी। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर मेरी अम्मी घबरा गई और पूछा, अरे क्या हुआ, चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? हाय मेरी बच्ची, कुछ तो बता, क्या हुआ? और तुम सिर्फ साइकिल लाई हो? तुम तो काफ़ी सामान लिस्ट लेकर गई थी। मुझे एकदम से रोना आ गया और फिर मैं रोती चली गई और फिर अपने लुटने की दास्तान हरफ बहरफ अम्मी को बल्कि सब घर वालों को सुनाई। सब ने सुनकर कहा, ये तो तुम्हारी बचपन की आदत है, हर किसी पर एतबार कर लेना। बहुत पहले की बात थी और दौर बहुत बदल गया है। लोगों के अंदाज और इरादे सब बदल गए हैं। इंसान के अंदर से इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। अब तो ये ज़माना है कि किसी के साथ कोई नेकी ना ही की जाए, उल्टे नेकी गले में पड़ जाती है। अब तुम यही देख लो, तुमने कितने खलूस से बाबा जी का ख्याल रखा और उन्होंने कितने भोंडे तरीके से तुम्हारे खलूस को ठुकरा दिया। वो कितने दिन इस सामान से अपनी ज़रूरत को पूरा करेंगे, कितने दिन उससे फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ तो वो कुछ दिन इससे मज़े कर लेंगे, खुदा के यहाँ तो हमेशा ही उसकी सज़ा पाते रहेंगे। इन सब की बातें मेरे दिल को बदल रही थीं और दिमाग में पेवस्त हो रही थीं। अब ज़माना और ज़माने के दस्तूर सब कुछ बदल गया है। अब इंसान इंसान नहीं रहा, वो खुद गर्ज और मफाद परस्त हो गया है। बहरहाल अब मेरा माइंड पहले जैसा नहीं रहा, या मुझे अक्ल आ गई है। जो भी हो, इस वाक़े से इतना ज़रूर हुआ है कि मेरे दिल में दरार पड़ गई है। अब किसी के साथ नेकी सोच समझ कर ही करनी चाहिए। और हाँ, मैंने फिर भी बाबा जी को माफ़ कर दिया है, क्योंकि हमारे अंबिया कराम तो बड़े बड़े जुर्म माफ़ कर देते थे। खुदा के लिए वो इतने बड़े और अजीम इंसान थे। जब वो इतने अजीम होकर माफ़ कर सकते हैं तो हम तो फिर भी एक अदना से ग़ुलाम, हमारी क्या औकात कि हम उनकी बराबरी करें, लेकिन कम से कम उनकी अच्छाइयों का तो मान रख सकते हैं। जाइए बाबा जी, मैंने आपको अपने बच्चों के सदक़े में माफ़ किया, खुदा भी आपको माफ़ करे, आमीन। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।